Students, now let us start a fresh chapter, dual nature of radiation and matter. It is very simple chapter. First of all, we will study about the dual nature of radiation. First of all, we can use the double nature of radiation. Double nature means radiations like light wave. Light consists of dual nature. Sometimes it behaves like a particle and sometimes it behaves like a wave. So it has a double nature. Later on we will study the dual nature of the matter. Matter also exhibits the dual nature. So first of all, the first part, the dual nature of radiation. Now, in order to start, the first theory about the light was given by the scientist Isaac Newton. Newton was the scientist and the first theory about the light जो दिया वो किसने दिया? By the first theory by the son Sir Isaac Newton. First theory Isaac Newton ने प्रपोज की and that was in the year 1637. 1637 में Isaac said that light is made of very small corpuscles. Corpuscles means a very small particles, and that's why this theory about the light is also known as Newton's corpusculars theory. Okay, this was also known as Newton's corpusculars theory. ये न्यूटन कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी भी कहलाती है. ओके, तो ये जो कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी है ये कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ very small corpuscles, very small particles. It is made of corpuscles and these corpuscles are weightless. These corpuscles are weightless. उसमें कोई weight नहीं होता. And second, the light consists of corpuscle. ठीक है, light consists of corpuscles. So this is the two basic point, and the third point is that each color has the different size of the corpuscles. मतलब कि लाइट में सारे जो पार्टिकल्स जो corpuscles होते हैं वो हर साइज के अलग अलग होंगे. जिस तरह से लाइट का वेवलेंथ होता है उसी तरह से light has the different size of the corpuscles. Light has different size of corpuscles. लाइट में जो corpuscles होंगे उनका साइज भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा. एंड वन मोर थिंग, फोर्थ पॉइंट, they travel with a very high speed. उनके अकॉर्डिंग, he hasn't calculated the speed, but उन्होंने इसके बारे में कहा कि जो लाइट के अंदर कार्पस्कल्स होंगे उनकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. कार्पस्कल्स travels with very high speed. ओके, उनकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. तो ये फर्स्ट थ्योरी लाइट की सर आइजैक न्यूटन ने प्रपोज की, और उस समय होता था कि जो आइजैक न्यूटन ने कह दिया तो आफ्टर 100 years न्यू थ्योरी ऑफ लाइट वाज डिस्कवर्ड. तो ये पूरा सिस्टम लाइट के बारे में 100 years तक चलता रहा. फिर इसके बाद में और जो
नई थ्योरीज आनी शुरू हुई, दैट वाज इन द ईयर अबाउट 1678। द सेकंड थ्योरी जो आई वो 1678 में बाय द साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइगन्स। क्रिश्चियन हाइगन्स, ये थ्योरी आपने पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स थ्योरी आपने पढ़ी है। तो ये जब थ्योरी आई, और हाइगन्स थ्योरी ये आपने पढ़ा है, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करती है, एंड द ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये थ्योरी आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। और इस थ्योरी में सबसे पहली बात ये जो इम्पोर्टेंट थी कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव नेचर। वेव नेचर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि लाइट में किस तरह का नेचर होता है। लाइट कंसिस्ट ऑफ द वेव नेचर इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, जो उन्होंने नाम दिया। लेटर ऑन जो थर्ड थ्योरी आई वो थी, नेक्स्ट थी मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ electromagnetic waves. This was also in the chapter electromagnetic waves. Maxwell theory electromagnetic wave की क्या थी कि light also consists of electric field vector, magnetic field vector, and both the waves, electric field and the magnetic field, are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. And the waveform given by the Maxwell, the waveform जो आपने वहाँ पर पढ़ा वो किस तरह का था स्टूडेंट्स? If this is the electric field and if this is the magnetic field, this vector and this vector both are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. This is electric field, this is magnetic field. So electric field, magnetic field, all are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation. तो ये भी एक वेव फॉर्म था और ये भी वेव नेचर ऑफ लाइट को एग्जिबिट करता है। इन सभी से हमको क्या क्या मिल सकता है स्टूडेंट्स? हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, वी कैन प्रूव नंबर 1, इससे हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वी कैन प्रूव द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड फिनोमेना जो आप प्रूव कर सकते हैं दैट इज रिफ्रैक्शन। थर्ड जो आप प्रूफ कर सकते हैं पोलराइजेशन। वी कैन प्रूव इंटरफेरेंस ऑल्सो, वी कैन प्रूव डिफ्रैक्शन ऑल्सो। तो ये जो फिनोमिना है ये किस थ्योरी को लेकर के हम प्रूफ कर सकते हैं? बाय यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ नेचर? बाय यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। तो आप देखें, सबसे पहले न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी जो कि क्लियरली शो करती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्कुल्स, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वेटलेस पार्टिकल होते हैं। फिर इसके बाद क्या शुरू हुआ? कुछ थ्योरी ऐसी थी जो कि ये वेव थ्योरी आई जिनसे हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें हम प्रूफ कर सकते थे। इस दोनों थ्योरीज के बाद स्टूडेंट्स, नाउ इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अबाउट इन द ईयर 1885 when photoelectric effect
was studied, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवर हुआ, तब ना तो हम इस पूरी वेव थ्योरी से, या तो आप हाइगन्स प्रिंसिपल से ले लें, मैक्सवेल थ्योरी से ले लें, इन सारी थ्योरी से वेव नेचर को लेते हुए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते थे। वी कैन नॉट प्रूफ। इसके लिए मैक्सवेल ने एक नई क्वांटम थ्योरी दी आफ्टर द डिस्कवरी व्हेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और आइंस्टीन्स जो क्वांटम थ्योरी थी वो पूरी तरह से स्टूडेंट्स डिपेंड थी ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आप इसे आइंस्टीन थ्योरी को मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कह सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लैंक्स, और यू कैन से आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी फर्स्ट। आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, हम अभी आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन। नाउ द थर्ड थ्योरी about the light was Einstein quantum theory, and this Einstein quantum theory totally depends upon the Planck's quantum theory. So that theory was given by the scientist Einstein in the year 1905. In the year 1905, Einstein has given the theory of light, and the first theory which proves completely the photoelectric effect. So the first point about the Einstein theory is that, first point, light consists of very small packets of energy. मतलब लाइट में बहुत छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, और ये जो एनर्जी पैकेट होते हैं ये मूव करते हैं, एंड दीज पैकेट्स आर मासलेस। इनका जो रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? लाइट कंसिस्ट ऑफ in the form of very small packets. The first point is light has packets of energy. Okay, and these packets of energy are known as photon. Number two, these packets of energy are called photons. ये क्या कहलाएंगे? फोटॉन्स। जो एनर्जी पैकेट हैं उनको क्या कहा गया है? फोटॉन कहा गया है। एंड दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी ट्रेवल्स विद द स्पीड of 3 into 10 to the power 8 meter per second. These packets travels with how much speed? 3 into 10 to the power 8 meter per second. इस स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट was that एनर्जी जो इन पैकेट्स की होती है वो होगी E is equals to h nu, where h is a constant and this constant is also known as Planck's constant, remember, and mu is the frequency of the packets of energy पैकेट्स। फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम फोटोन भी कह सकते हैं। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो म्यू होगी, यहाँ पर म्यू बोलिए। h इज कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट।
and where h is how much, 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, and mu is the what, frequency of photon. ये होगी, इसका जो एनर्जी है वो मास से रिलेटेड नहीं होगी, ना तो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, ना एम जी एच, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि इनका जो मास है वो दे डजंट हैव एनी मास, रेस्ट मास इज ज़ीरो, रेस्ट मास इज हाउ मच, ज़ीरो, नो मास। इसीलिए ये एनर्जी को हम जब भी फोटॉन की एनर्जी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम हमेशा फोटॉन की एनर्जी h न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस फॉर्मूले पर आइए। इफ यू विल इंक्रीज न्यू, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, एनर्जी भी फोटॉन की बढ़ेगी, E ऑल्सो इंक्रीजेस, इज इट राइट? देखिए डायरेक्ट संबंध है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेवगेयर की, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। वायलेट की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसके पहले जो आता है वो अल्ट्रा वायलेट आता है, इसके बाद जो आता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं। अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ क्या होगी, और कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किससे, वायलेट के कंपैरिजन में। जब वेवलेंथ कम होगी स्टूडेंट्स, नेचुरली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फॉर्मूला पढ़ा है, C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ओके, अगर C 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, म्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन है, C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा या एन लैम्डा, आपने पढ़ा है एन लैम्डा। तो C अगर हम कांस्टेंट ले लें तो लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा इसका ज़्यादा है, वेवलेंथ इंफ्रारेड का और ज़्यादा होगा, किससे, रेड से और ज़्यादा होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ कम है, वायलेट से भी कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ नेचुरली कम होगी, वेवलेंथ नेचुरली कम होगा, ध्यान रखिएगा। मीन्स अल्ट्रा वायलेट हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन वायलेट या रेड, तो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट की ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी, अल्ट्रा वायलेट की ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, वायलेट के कंपैरिजन में, रेड के कंपैरिजन में, इंफ्रारेड के कंपैरिजन में। क्लियर? ये मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम इनका आगे यूज़ करना है, आगे जब पढ़ेंगे तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। 7th पॉइंट आता है स्टूडेंट्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स हम जैसे आपसे कहें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाइए, व्हाट डज इट मीन, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाइए। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड ज़्यादा है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फोटॉन का नंबर बढ़ा रहे हैं। देखिए, और कुछ नहीं, एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन। तो इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ photons
पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इनको हम इंटेंसिटी कहते हैं। और मैं आपसे कहूँ इंटेंसिटी बढ़ाइए तो सिर्फ आप क्या बढ़ा रहे हैं, केवल क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एरिया अगर वही है, टाइम वही है, तो हम सिर्फ फोटोन का नंबर बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, आगे यूज़ करेंगे हम इनको जब ग्राफ प्लॉट करेंगे। मतलब इसको और आप क्लियर समझिए। जैसे आपको एक 40 वाट का बल्ब दिया हुआ है और एक 100 वाट का बल्ब दिया हुआ है, दोनों रेड बल्ब हैं, ठीक, मतलब रेड बल्ब है, मतलब दोनों की जो वेवलेंथ है जो प्रोड्यूस हो रही है वो सेम है। ये फॉर्मूला, अब वेवलेंथ अगर सेम है, वेवलेंथ अगर सेम है स्टूडेंट्स, तो नेचुरली जो उसकी एनर्जी होगी वो भी सेम होगी। क्यों, ये देखिए, E इज इक्वल्स टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी C अपॉन लैम्डा। न्यू को C अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। C इज अ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, H कांस्टेंट, दोनों रेड कलर के हैं, लैम्डा दोनों का सेम है। ओके, तो इसका मतलब दोनों फोटॉन्स की एनर्जी तो सेम है, दोनों का लैम्डा सेम हो गया, एनर्जी दोनों की सेम हो गई। अब इसका क्या मतलब है, इसकी लो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। दिख रहा है, ये 40 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है। इसका मतलब इसमें जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दे आर लेस इन नंबर, एनर्जी दोनों की सेम है, दोनों रेड है। मैंने अभी आपसे कहा, इसमें कंफ्यूज मत होइए, इंटेंसिटी बढ़ाना है मतलब एनर्जी तो नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हमें नंबर बढ़ाना है। 100 वाट का बल्ब ज़्यादा फोटॉन्स पैदा करेगा, 100 वाट का बल्ब। अब बताओ यहाँ फोटॉन्स का नंबर कैसा है, ज़्यादा है। 40 वाट में फोटॉन्स का नंबर कैसा है, कम है। क्लियर? तो इंटेंसिटी इंक्रीज मीन्स व्हाट, ओनली you are increasing only number of photons. All photons should have same energy. एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? 8th पॉइंट, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। वर्क फंक्शन मीन्स इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से मिनिमम जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इसका यूज़ होगा स्टूडेंट्स, इसलिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। वर्क फंक्शन 5, ये क्या होता है? जैसे अभी हम आगे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ये एक मेटल प्लेट आपको दी हुई है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पर अंदर मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑल्सो। अब हमने इस पर लाइट इंसिडेंट किया, फोटोन विच आर मेड ऑफ, लाइट इंसिडेंट किया मतलब लाइट के अंदर क्या मौजूद हैं, फोटॉन्स। अब फोटोन मैंने किस पर डाले, मेटल प्लेट पर इंसिडेंट किया। नाउ व्हाट हैपन्स, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मेटल प्लेट, जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। मतलब क्या हुआ, रिमेंबर, जो एनर्जी हम इस पर डाल रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी
जितनी भी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से फ्री करने के लिए बाहर, सबसे पहले तो बाहर निकालना है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। प्रोसेस समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको एक पत्थर लेकर के दौड़ना है, पत्थर अभी कहाँ रखा हुआ है? ज़मीन पर रखा हुआ है। आप आए, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आपने उस स्टोन को नीचे से उठाया, फिर आप आगे भागे। तो ये स्टेप देखिए, प्रोसेस देखिए। सबसे पहले आपने स्टोन को उठाया, फिर आप आगे गए। तो ये दो स्टेप हो गई। जो मिनिमम एनर्जी सबसे पहले उठाने में लग रही है, वो एनर्जी कहलाएगी वर्क फंक्शन। ओके। इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के अटैच्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दूसरा भी एटम होगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन अटैच्ड होगा, इसका भी ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अटैच्ड है। क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री है? क्या नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये इस न्यूक्लियस से अटैच्ड है। आपको इसे पहले तो क्या करना है? फ्री करना है। तो जो भी एनर्जी इसको बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो रही है, कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस से, अंदर से नहीं। अंदर तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो और ज़्यादा होगा। जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा स्टूडेंट्स? हमेशा सरफेस से। वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा, सरफेस से। कि सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। एक फोटॉन गया, जो भी एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में, जो भी एनर्जी खर्च होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वर्क फंक्शन। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन स्टूडेंट्स? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to make the electron free, or minimum amount of energy required to take out the electron from the, एक ही बात है, और energy required to take out the electrons from metal surface से जो एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये ध्यान रखिए, वो क्या कहलाती है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। क्लियर? ये हमेशा ऑलवेज कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमेशा किस में कैलकुलेट होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेटेड होगी। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिए स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। वी ऑलरेडी रखा हुआ है। कूलम इंटू वोल्ट क्या कहलाता है? जूल। कूलम इंटू वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिमेंबर।
अगर आपको जूल में कैलकुलेशन करनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का। तो ये जो वर्क फंक्शन है ये हमेशा किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ओके, जो वर्क फंक्शन है वो किस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी है, जो एनर्जी मेटल सरफेस से निकालने में खर्च हो रही है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए किसकी है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर है वो कितनी तेजी से बाइंड है। अगर मेटल ऐसा है जिसका अट्रैक्शन पावर, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा, उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वर्क फंक्शन ज़्यादा होना किस बात पर निर्भर करता है, इस पर या इस पर, मेटल पर। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ध्यान रखिए, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। It is the property of metal. ओके, ये मेटल की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। ओके, जो अब ये जो फाई है ये किस बात पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, फाई डिपेंड्स अपॉन सरफेस, अपॉन सरफेस। सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा, ये जो फाई है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इम्प्योरिटीज ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन इम्प्योरिटीज इन द मेटल, इम्प्योरिटीज इन मेटल। ओके, मेटल की, क्योंकि ये जो फाई है स्टूडेंट सिर्फ मेटल पर, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक मेटल की होंगी उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल सीजियम, इसका जो वर्क फंक्शन है स्टूडेंट्स, जो फाई है वो है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में नहीं है। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा। तो ये अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए आप यहाँ पर, तो सीजियम का वर्क फंक्शन है 2.14। सोडियम का अगर हम लें, फॉर सोडियम मेटल ये है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, प्लैटिनम का अगर लें, प्लैटिनम इसका है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखिए यहाँ, सीजियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो चाहिए है वो इतनी चाहिए पड़ेगी। ओके, कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम की सरफेस से हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कितनी एनर्जी चाहिए पड़ेगी स्टूडेंट्स, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.75 है ये, 2.75 इतनी एनर्जी चाहिए पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, सरफेस से बाहर निकल पाएगा। इससे अगर आप एनर्जी कम डालते हैं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? नो। इंसिडेंट कम एनर्जी की चाहिए इतनी है, कैसे निकल पाएगा? प्लैटिनम है, देखिए कितनी ज़्यादा वर्क फंक्शन है इसका, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसका, प्लैटिनम में से, प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है बच्चों, इतनी एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ेगी 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। अगर मान लीजिए आपने इंसिडेंट एनर्जी इससे कम डाली,
इससे कम है इंसिडेंट। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली आपने, इनमें सभी में कितना इंसिडेंट किया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ क्या इवन सीजियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा? नो। ना सोडियम में से तो आ ही नहीं सकता, प्लेटिनम में से तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसकी तो सबसे ज़्यादा है। तो मतलब समझ गए, जितनी भी इंसिडेंट एनर्जी डालोगे इलेक्ट्रॉन निकालना है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। मान लीजिए अभी जैसा मैंने, एक स्टोन है, स्टोन को निकालने के लिए, स्टोन को उठाने के लिए आपको 2 जूल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है फॉर एग्जांपल, और आपके पास है 1.5, तो क्या आप उस स्टोन को उठा करके दौड़ पाओगे? नहीं, क्योंकि आपके पास है 1.5 और अकेला उठाने में 2 चाहिए, तो इवन क्या आप उसे उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। कब उठा के दौड़ पाओगे? जब आपकी एनर्जी 3 जूल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उठाने में लग गई और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप उसको लेकर के आगे जाओगे, इतनी एनर्जी से आप आगे जाओगे। क्लियर बात है। तो ये मीनिंग समझ गए। वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से मिनिमम एनर्जी जो लगती है निकालने के लिए वो कहलाती है वर्क फंक्शन। ओके, मेटल बदल दोगे वर्क फंक्शन बदल जाएगा। ओके, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट, phi can also be written as h nu naught। ओके, h कांस्टेंट एनर्जी है ना ये, तो h तो कांस्टेंट है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और फाई को वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ई कैपिटल या फाई थ्रेशोल्ड एनर्जी, फाई इज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन एक ही बात है। कहीं आए व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? एच न्यू नॉट, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, that is also called work function। Okay, now it is clear।